Good morning, guys. This is the first lecture for sets class 11th, and it will also be included questions of JEE. This is the first lecture, introductory. I would like to try to clear each and every point related to sets. Okay. Chapter first, sets in 11th class. So what we'll study next, representation of sets, what are subsets, what are power sets, cardinality of sets, and this is the first views. Just we have to define what is the set. Set word and element word, actually they are not properly defined, but it is similar to word collection or group. You can say a well defined and well distinguished collection of objects is called set. It means that anything, whenever I speak about anything, then we have to know what is the group in which that object is contained. Only this is the meaning of this. And the similar word set, collections, group, etc. In general, we represent sets with capital letters. Capital letter means like A, B, C, X, Y, Z, etc. In general, we represent sets with capital letters, and all the elements of a set will be written in braces or curly bracket and should be only once. Yani any word or any alphabets or any digits or any object is repeated, then we have to write only one time in curly bracket. In general, we represent sets with capital letters. You understand? All the elements of set A will be written in and should be only once. Means that must not be repeated many times. Is it clear? For example, this is the IPL team. This is also a set. This is also a set of IPL team, and this is the set of dining room, and this is the set of books. This is the set of books. This is the set of natural number. You can say natural number. This is the set of natural number. This is the set of natural number. 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to infinity. And this is the set of whole number, W. And this is the set of integers. Integers I or Z. Why it is called Z? Z means Zelan. Zelan. This is the word. One alphabet, first alphabet is written in abbreviated form Z.
These are the examples of sets. सेट कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी वस्तु, हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें ये पता चल जाए कि ये वस्तु या ये ऑब्जेक्ट या एलिमेंट इस ग्रुप का है या इस सेट का है। ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं उसको सेट। फॉर एग्जाम्पल, आर्मी is a set of soldiers. Navy set, it is also set. Classes, class, you can say class. Set of books and so on. A well defined and well distinguished collection of objects is called set. Notation of for sets I explained earlier. A, X, P and these are the capital letters. All the sets are represented by capital letters. In general, we represent sets with capital letters. All elements of sets are written in braces or curly bracket and should be written only one time. This is the set of natural number. You can say 1, 2, 3, dash dash up to infinity. Z is the set of integer. Set of integer. -3, -2, -1, 0, 1, 2 and so on. This is the set of real number. Real number. A real number means all the numbers, natural number, whole numbers, integers, all rational number, irrational numbers, these are all real number contains. C for complex number. Complex number. You will study in next any chapter in 11th class. Q is rational number. Rational number. This is the set of rational number. This is the set of natural number, set of integers, set of real numbers, set of complex number, and Q is the set of rational number, and W is set of whole number. Whole number means 0, 1, 2 up to infinity. And you can say these are the generally we use in our practical life and also in study from lower classes to higher classes. Natural number, integers, real numbers, complex number, rational number and whole numbers. How can we express set? How can we express set? Roster form or listing form. And second one is set builder form or rule form. Representation of set. This is the first form and this is the second form. Roster form means list. If anyone say that a set of vowels can be written as A is equal to A, E, I, O, U. Set of integers Z is equal to -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc. And it is written in braces or in curly bracket. This is the form of how can we express the set in roster form means we list all the elements of set in curly bracket.
in curly bracket. If we express all the members or elements in curly brackets, it means that we are writing in roster form or tabular form or listing form. And you can also write so many examples. Set of alphabets we can write. Set of natural number 1 2 3 dash dash up to infinity, whole number, etc. Set builder form or rule form, it's very important. If we face a number of elements, so many elements, then how can we express in curly bracket? We will try to write everything if we want to write in curly brackets. Set, then there would be some rule which express all types of the elements of set. This is the set builder form, or you can say it is general form. General form means if there is a set A in which there are X elements such that X is equal to natural number. This is the simplest form of set. ये जो है x जो है ये रिप्रेजेंटेटिव है, ये वेरिएबल है. अगर हम ये कहते हैं कि x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर 1 to इनफाइनाइट सब नंबर को एक्सप्रेस कर सकता है ये, इसलिए इसको हम वेरिएबल फॉर्म कह सकते हैं, इसको वेरिएबल बोलते हैं. और ये नेचुरल नंबर के सभी मेंबर्स जितने सबको रिप्रेजेंट करता है ये, इसलिए इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम देखते हैं a इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवेल्स, तो यू कैन राइट a इज इक्वल टू A is a set in which there are X members, means all the members, such that this sign expresses such that A is a set in which there are X members such that X is English vowel. So it can write. Similarly, Z is the set of integers, so such that there are X members, such that X is integers. Similarly, we can write natural number, whole number, integers and any types of the set. सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब ये होता है कि किसी भी सेट को उसके मेंबर्स चाहे जितने भी हों, काउंटेबल हों या अनकाउंटेबल, फाइनाइट हों या इनफाइनाइट हो, सबको हम सेट बिल्डर फॉर्म के में रूप में लिख सकते हैं. जो लिस्टिंग फॉर्म होता है वो भी हम लिख सकते हैं, लेकिन उसमें लिमिटेड मेंबर्स होते हैं तो लिखने में कंफर्टेबल होता है. तो सेट बिल्डर फॉर्म इन जनरल में किसी भी सेट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं जहां पर किसी भी सेट में जो मेंबर्स होता है. ध्यान दीजिए, ए अगर कोई भी सेट हो, यहां पर कोई भी सेट होता है, यहां पर हम लिखते हैं ए इज अ सेट इन विच देयर आर एक्स मेंबर्स. एक्स मेंबर्स मीन्स इन जनरल ईच मेंबर इज एक्सप्रेस्ड बाय एक्स ऑफ दैट सेट. एक्स इज इक्वल टू एन.
n, and you can say that n is equal to natural number. You can also write like this, n belongs to natural number. You can also write this. Similarly, you can write, and this is the very good form. We can express all types of the sets in this form. Here is some examples of sets. Describe each of the following sets in roster form, means tabular form or listing forms. Describe each of the following sets in roster form. First of all, we have to try to study this. It is a set. It is a set in which there are x members or x elements such that x is a positive integer and a divisor of 9. Positive integers and divisor of 9. Positive integers, first of all, we have to write z. Z is equal to dash dash minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, dash dash. Means only positive integer means 1 to infinity. Positive integer means z, positive integers means 1, 2, 3 up to infinity. This is the positive integers. What are the numbers which divides 9? So we can say that a set A is a set. We have to write all the positive integers which divides 9. So 9 is divisible by 1. So we can write 1. 9 is divisible by not 2, by 3. We can write 3. And which number? Divisor of 9. Next, 6, no. 7, no. 8, no. Only 9. There are only 3 members or 3 elements which divides 9. 1, 9 is divisible by 1. 9 is divisible by 3. 9 is divisible by 9 by itself. So, A is the set of positive integer which divides 9. This is the example. 1, 3, 9. And the second one, it is a set. It is a set. You can write B, you can write C, you can write D, but just in simple way I am writing only A. A is a set in which there are x members such that x belongs to Z. X belongs to Z and modulus of x is less or equal than 2. How can we write this? Modulus means this is the apparatus which can change all the negative or positive number into positive. Modulus means this is the mod. कोई भी नंबर इसमें हम लिखते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव कर देगा. दिस इज लाइक अ बाबा फंक्शन. Whenever any person goes to the Baba, then Baba always makes him positive. He may be negative or positive, but Baba makes him positive. So we can say that modulus is like a Baba function which can make positive or negative into positive. Baba means ऐसे बाबा जी ऐसे ऋषि हैं जो कोई भी व्यक्ति चाहे निगेटिव सोचने वाला चाहे पॉजिटिव उसके पास जा करके वो हमेशा पॉजिटिव ही हो जाता है. इसलिए इसको हम बाबा फंक्शन से याद भी रख सकते हैं. तो कौन कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो
2 के इक्वल भी हो सकते हैं या 2 से लेस हो। कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 0 हो सकता है, इज लेस देन 2, 1 हो सकता है, इज लेस देन 2, -1 भी हो सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसके अंदर लिखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो भी लेस देन 2 ही होगा। फिर -+2 लिखें तो 2 के इक्वल है, -2 भी लिख सकते हैं जो 2 के इक्वल है। तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स हैं जिसको हम लिख सकते हैं। ए इज अ सेट, इट इज रिटन in which form it is written? Set builder form, and we have to write this in roster form. So we can write it simply -1, -2, 0, +1, +2। ये +2 भी है, इसको हम लिख सकते हैं। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं 0 ±1 ±2, ऐसे भी लिख सकते हैं। I think that you will able to understand each and every point related to set. Here is the next one. Is written, there is a X members in set such that X is a letter of the word proportion. We can write this proportion. Proportion you can write here A. A is a set. This is written in set builder form. How can we study or read this? There are X members in set such that, this means such that X is a letter of the words proportion. So you can see proportion has 2, P is 2 times, O is 3 times, R is 2 times, but we understand that any alphabets or members or elements should not be repeated. So P can be written only one time, P, comma. R is repeated 2 times, then we can write only 1 times R. O is repeated 3 times, we can write only O 1 times. R. T is only 1 time, we can write this T 1 time. I is written 1 time, I can be written as I 1 time. O already written, and N is written 1 time, so we can write this in roster form, PROTIN. There is no any problem about it is written here first or second, because we can write all the members or elements hither and thither. Here there is no any rules to write these alphabets in sequence or in order. It's not matter. So we can write PROTIN, RPOTIN, TINORP, etc. इसको हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं. This is the example, perhaps you understand. And the fourth question is, this is the set in which there are X members or X elements such that X is equal to N.
by n square plus 1 and it is restricted. Natural number is restricted, that we can write only natural number greater or equal than 1 and less or equal than 3. Means how many numbers, how many natural number we can write? You can see here n can be written 1, 2, 3. Here is less and equal. Here less and equal. Less means 1 से छोटा लिख सकते हैं और equal means 1 भी लिख सकते हैं. मतलब सेट में 1 और 3 भी इंक्लूड है. बोथ दे आर इंक्लूडेड. सो n इज इक्वल टू 1, 2, 3. 3 भी इंक्लूड है. देखिए अगर हम इसको लिखते हैं 1 लेस n लेस 3, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 और 3 इंक्लूड नहीं है. केवल 1 और 3 के बीच में नंबर इंक्लूड है, जो कि केवल क्या होगा, नेचुरल नंबर 2 होगा. लेकिन यहां पर क्या क्वेश्चन में है, n इज ग्रेटर आर इक्वल देन 1 एंड लेस आर इक्वल देन 3. सो वी कैन राइट n इज इक्वल टू 1, 2, 3. ओनली दीज नेचुरल नंबर्स. सो इफ वी पुट n is equal to 1, then x is equal to 1 by 1 square plus 1 is equal to 1 by 2. If we write n is equal to 2, then 1 by 2 square plus 1 is equal to 1 by 5. If we write n is equal to 3, then we can write like this: 3 square plus 1 is equal to 1 by 10. So in bracket we can write 1 by 2, 1 by 5, 1 by 10. Only these 3 fractions. Is it clear? This is introductory. Everything must be explained thoroughly. Write the set in set builder form. Set builder form, you know, rule form. Rule form. Write the set 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5 and so on up to 9 by 10 in set builder form. Means upper side we can see that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6, 7, 8, 9 means natural number. नीचे जो लोअर नंबर है, ऊपर वाले नंबर से 1 मोर है, एक ज्यादा है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज द सेट इन विच देयर आर x एलिमेंट्स सच दैट x इज इक्वल टू, अपर साइड में क्या लिखा है 1, 2, 3 से लेकर 9 तक, तो इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर है, तो इसको हम नेचुरल नंबर लिख सकते हैं n बाई, और यहां पर देखो नीचे वाले जितने नंबर है 1 मोर है ऊपर वाले से, यानी लोअर नंबर इज मोर देन अपर वन. देन वी कैन राइट n प्लस 1. अब इसमें यह भी ध्यान देना है कि हम n की वैल्यू कितनी रख सकते हैं. तो देखिए n की वैल्यू हम अगर 9 लिखते हैं तो 10 हो जाता है. n इज लेस आर इक्वल टू 9. ये हो गया अपना x इज इक्वल टू n बाई n प्लस 1. और n की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हम? 9 तक लिख सकते हैं और 9 भी लिख सकते हैं. देखिए आप ध्यान से, अगर हम n की वैल्यू 1 लिखें, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिए 1 से लेकर 9 तक हम लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे तो क्या आएगा 1 बाई 2. देखिए 2 बाई 3, 3 बाई 4, 4 बाई 5, 5 बाई 6 एंड सो ऑन अप टू 9 बाई 10. मीन्स वी कैन राइट दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म. यू कैन ऑल्सो यूज एनी कैपिटल लेटर टू एक्सप्रेस दिस, नो प्रॉब्लम. एंड व्हाट इज दिस?
And the second one, write the set x is equal to 1, 1 by 4, 1 by 9, 1 by 16, 1 by 25 and up to infinity in set builder form means, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? देखिए, x इज अ सेट, ऐसे लिखा हमने. देयर आर x members or elements such that x is equal to 1 by n square, where n belongs to नेचुरल नंबर. ये हो गया. देखिए, अगर हम 1 लिखते हैं यहां पर तो 1 बाई 1 यानी 1 हो गया. 2 लिखेंगे तो 1 बाई 4 हो जाएगा. 3 लिखेंगे तो 1 बाई 9 हो जाएगा. 4 लिखेंगे 1 बाई 16 हो जाएगा. 1 बाई 25 हो जाएगा. इस तरह से हम लिखते जाएंगे तो नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक है. तो पूरे नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n, सब नेचुरल नंबर के लिए ये सही हो जाएगा. तो ये सेट अपना हो गया. समझ में आ रहा होगा. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स. कितनी टाइप्स होते हैं सेट की? सेट की टाइप कितनी होती है ये हम थोड़ा ध्यान देंगे और फिर हम देखिए टाइप्स ऑफ सेट्स. एम्प्टी सेट्स. एम्प्टी सेट मीन्स ऐसा सेट जिसमें कोई मेंबर ना हो. फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू, ये खाली ब्रैकेट हमने लिख दिया. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ये नल सेट का सिंबल है. अगर हम एम्प्टी सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी देयर इज नो एनी एलिमेंट्स इन सेट, या इसको हम लिख सकते हैं नल सेट फाई. फाई इज एक्सप्रेस्ड फॉर एम्प्टी सेट. एम्प्टी मीन्स खाली, यानी ब्रैकेट में कोई मेंबर ही नहीं है तो कुछ नहीं है, तो उसको हम जीरो नहीं लिखते क्योंकि जीरो हम नंबर होता है. यहां पर हमें सिंबल लिखना है. तो एम्प्टी सेट का सिंबल फाई होता है जिसको हम नल सेट के लिए इस्तेमाल करते हैं. एम्प्टी सेट या नल सेट यानी कोई मेंबर नहीं है. अब यहां पर एक चीज ध्यान देने की है कि अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर अगर हम ये नल सेट ऐसे लिख दें तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, नॉट एम्प्टी सेट, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर एक मेंबर है, भले ही वो चाहे नल सेट ही क्यों ना हो, यानी फाई ही क्यों ना हो, लेकिन ये नल सेट नहीं है, नॉट नल सेट या एम्प्टी सेट, ये नहीं है, ध्यान रखना है. सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसमें केवल एक मेंबर हो. ऐसा सेट जिसमें केवल एक मेंबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन मीन्स सिंगल. सिंगल. अगर किसी भी सेट में एक मेंबर है, मान लीजिए ये एक सेट है जिसमें केवल ए लिखा है, तो ये सिंगलटन सेट हो गया. और भी हम लिख सकते हैं बी सेट है जिसमें कि 1 लिखा है, तो भी ये सिंगलटन सेट हो गया. और अगर हम ए इज इक्वल टू नल सेट लिख देते हैं ऐसे, तो भी ये सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें एक मेंबर है. अब यहां देखते हैं हम कार्डिनल नंबर और कार्डिनलिटी. कार्डिनल नंबर और कार्डिनलिटी. अगर किसी भी सेट में जितने मेंबर्स हैं उनको अगर हम उनके मेंबर्स काउंट करके लिख दें तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर और कार्डिनलिटी. ठीक है, जिसको हम ध्यान देते हैं. मान लीजिए किसी सेट में ए इज अ सेट इन विच देयर आर ए बी सी डी, there are 4 elements in set A, then cardinality of set A, number of A is equal to 4. It is
अगर कोई सेट दिया है बी, इसमें कोई भी मेंबर नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ बी, क्या लिखेंगे, नल सेट यानी 5, एक भी सेट नहीं है इसमें। इसको हमने गलत लिख दिया, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नंबर से रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हम इसमें कोई भी मेंबर नहीं है, इसलिए हम इसको कार्डिनलिटी 0 लिखेंगे। और कोई सेट दिया है, मान लीजिए सी दिया है, इसमें हमने लिखा 1 2 5 7 ऐसे लिखा है, तो कार्डिनलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4। यानी किसी भी सेट में जितने मेंबर्स होते हैं अगर उनको हम नंबर लिख देते हैं कि 4 मेंबर्स हैं या 5 मेंबर्स हैं या 6 मेंबर्स हैं, 1000 मेंबर्स हैं, तो उसको हम कार्डिनलिटी ऑफ द सेट कहेंगे। फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि सेट के जितने मेंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर से काउंटेबल हों। फाइनाइट सेट का मतलब होता है काउंटेबल बाई नेचुरल नंबर। अगर ऐसा है तब तो वो फाइनाइट सेट है, और वो जो नेचुरल नंबर से हम उसको एक्सप्रेस करें और कहीं ना कहीं वो नेचुरल नंबर टर्मिनेट भी होना चाहिए। काउंटेबल बाई नेचुरल नंबर मस्ट बी टर्मिनेटेड। फाइनाइट सेट उसको बोलते हैं। यानी कि जितने भी सेट होते हैं उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक तो काउंटेबल किससे हम काउंट करें, नेचुरल नंबर से, और वो नेचुरल नंबर कहीं ना कहीं टर्मिनेट होना चाहिए, कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। जैसे 1000 है, करोड़ है, 1 करोड़ है, लाख है, 1000 है, 100 है, तो ये 100 पे टर्मिनेट हो गया, तो ये इसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। और इनफाइनाइट सेट के जितने मेंबर हैं वो किसी भी नंबर से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, काउंटेबल भी हो और वो इनफाइनाइट तक हो। जैसे हम इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं तो ये इनफाइनाइट सेट है, 1 2 3 डैश डैश डैश। ये होल नंबर हम लेते हैं, ये भी फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट। डब्लू लेते हैं तो इसमें क्या आएगा, 0 1 2 3 से इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट है। बहुत सारे मेंबर्स हैं, जैसे कि इंटीजर है, ये भी क्या है, इनफाइनाइट है। इसको हम लिख सकते हैं -3 -2 -1 0 1 2 डैश डैश, ये भी इनफाइनाइट है। फाइनाइट सेट को हम अब जैसे एग्जांपल लें हम, जैसे मान लीजिए ए सेट में अभी हमने लिया था अल्फ़ाबेट्स वॉवेल, ए बी सी, सॉरी ए, ओके यू कैन राइट ए बी सी, इट इज फाइनाइट सेट। बी इक्वल टू ए ई आई ओ यू। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए इसको जब हम मेंबर इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 यानी जो नंबर हमने यूज़ किया काउंट करने के लिए वो नेचुरल नंबर है। अगर वो नेचुरल नंबर है तभी ये क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। और टर्मिनेट हो रहा किस पे, 3 नंबर पे, यानी 1 2 3, तो नेचुरल नंबर टर्मिनेट्स एट 3, सो इट इज ए इज अ सेट which is countable, you can say A is countable set या finite set. B is also finite set. Why? Because these alphabets or vowels is used to count by natural numbers A 1 2 3 4 5.
वी हैव यूज्ड नेचुरल नंबर 1 to 5. नेचुरल नंबर टर्मिनेट्स एट 5, so it is also फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट वो होता है जिसके जो मेंबर्स होते हैं वो फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, और काउंट किससे करें? नेचुरल नंबर से करें, और वो नेचुरल नंबर किसी न किसी नंबर पे टर्मिनेट होना चाहिए, नेचुरल नंबर पे ही टर्मिनेट होना चाहिए. ये जरूर है कि 1000, 1 लाख, करोड़, बिलियंस, मिलियंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो काउंट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा. अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की. यूनिवर्सल सेट की हम बात करें तो हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं. यूनिवर्सल सेट के लिए बात करते हैं. दूसरा कलर ले लेते हैं ना, ये ले लेते हैं. यूनिवर्सल सेट. सॉरी, यूनिवर्सल सेट. ध्यान दीजिए, दिए हुए कॉन्टेक्स्ट में, जैसे मान लीजिए ए कोई सेट दिया है 1 2, दूसरा बी सेट दिया है 3 4, और सी सेट दिया है 5 6. ऐसे 3 सेट दिए हुए हैं. तो इसको हम यूनिवर्सल सेट में अगर लिखें तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किससे हम करते हैं? यू से. ये यू है. यूनियन के लिए भी यू आता है और यूनिवर्सल सेट के लिए भी आता है. थोड़ा सा जब हम कोई सवाल करते हैं तो उसमें समझ में आता है यूनिवर्सल होगा कि यूनियन होगा. तो यूनिवर्सल सेट के लिए हम क्या करते हैं? ऐसा सेट लेते हैं जिसमें ये सभी मेंबर्स, इसके ए के, बी के, सी के, और जो भी गिवन में सेट दिए होते हैं सब के मेंबर अगर इसमें आ जाते हैं तो वो इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट कहलाता है. वैसे भी यूनिवर्स का मतलब होता है पूरा. सैटेलाइट्स हैं, प्लैनेट्स हैं, मीटराइट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, सब इसी के अंदर होते हैं. तो यूनिवर्स का मतलब हर चीज को अपने अंदर रखता है. ठीक उसी तरह से यूनिवर्सल सेट है तो जितने भी गिवन सेट होंगे उनके सभी मेंबर इसके अंदर अगर हों तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा. जैसे 1 2 3 4 5 6, ये यूनिवर्सल सेट इन सब के लिए है. अच्छा, अभी हमने सबसेट नहीं पढ़ाया है, नहीं तो हम ये लिख सकते हैं कि ए के जितने मेंबर हैं वो भी यू में है. तो यानी कहने का मतलब जितने भी मेंबर, जितने भी सेट हों वो जिस सेट के सबसेट्स हों वो जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा. तो ए इज सबसेट ऑफ यू, बी इज सबसेट ऑफ यू, सी इज आल्सो सबसेट ऑफ यू. तो यू क्या हो गया? इनके लिए यूनिवर्सल सेट हो गया. यूनिवर्सल सेट इनके लिए हो गया ये. अच्छा, ये जरूर नहीं, हम चाहें तो इसके लिए एक सेट और भी लिख सकते हैं. जैसे मान लीजिए हमने यूनिवर्सल सेट को हम नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर इन सब को रख सकता है अपने अंदर. यानी ये जितने भी सेट हैं सब यूनिवर्सल सेट, नेचुरल नंबर के सब सेट हैं. तो नेचुरल नंबर को हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं. लेकिन हमें क्या होता है कि दिए मतलब इन गिवन कॉन्टेक्स्ट, यानी दिए हुए जितने भी सेट हैं उनके संदर्भ में हमें यूनिवर्सल सेट निकालना पड़ता है. तो इसका मतलब जितने भी सेट दिए हुए वो सभी सेट जिस सेट के सबसेट हों, या वो सेट जिसमें इन दिए हुए सेट के जितने भी मेंबर्स हैं सब उसके अंदर आ जाएं, तो वो इन सब से बड़ा हो जाता है. इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट. हिसाब समझ में आ गया होगा. अब जैसे मान लीजिए एक सेट हमने ये लिया ए बी सी, और बी सेट लिया पी एम एन. अब कोई कहे इसका यूनिवर्सल सेट बताओ, तो इसका यूनिवर्सल सेट हम क्या लिख सकते हैं? जितने भी अल्फाबेट्स इंग्लिश के होते हैं 26 अल्फाबेट सब इसके क्या हो जाएंगे? यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे. लेकिन अगर हम इसका यूनिवर्सल सेट बनाना चाहें तो वो ऐसे बन सकता है. यूनिवर्सल सेट फॉर ए एंड बी क्या हो सकता है? इनसे सभी मेंबर इसमें होने चाहिए. तो आप क्या लिख सकते हो? ए बी सी पी एम एन, ऐसे लिख सकते हैं. तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया.
लेकिन इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि u इक्वल टू A B C to Z, इतने अक्षर जितने भी ABCD से लेकर Z तक होते हैं सब इसके यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं। लेकिन अगर यूनिवर्सल सेट हमें गिवन कॉन्टेक्स्ट में अगर हमें लिखना है तो हमें ध्यान रखना है कि A और B जिस सेट में हो, सभी गिवन जितने भी सेट होते हैं उन सब के मेंबर जिस सेट में होंगे वही उनका यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, अब थोड़े से अब देखो यहां पर दिया है अ सेट विच हैज नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड नल सेट। अभी हमने इसको पढ़ाया है, तो ये चीज़ तो हम अब इसको हम नल सेट से रिप्रेजेंट करते हैं या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने बताया था। अब इसको सवाल हम करते हैं। ठीक है, तो सवाल करके देखेंगे, सवाल करके देखते हैं। देखिए, A is a set in which there are x members such that x square minus 3 is equal to 0। ये ऐसे लिखा है, मतलब इसमें मिस प्रिंट है थोड़ा सा, ये लिखा है। अब इसमें कोई कहे x इज रेशनल नंबर है, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से मेंबर हो सकते हैं? इसमें कौन कौन से मेंबर्स हो सकते हैं? देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो ये जो है इसमें मेंबर्स तो आ रहा है इसमें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ले सकते हैं रेशनल नंबर होना चाहिए, और यहां पर क्या आ रहा है? ये इरेशनल नंबर है। √3 लें या माइनस √3 लें, ये दोनों नंबर इरेशनल नंबर हैं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इस सेट में क्या होना चाहिए? x इज रेशनल होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? ये एम्प्टी सेट हो गया। ये क्या है? एम्प्टी सेट है या नल सेट है? ये एम्प्टी सेट हो गया। बात समझ में आ रही है? एन एक्स इज ए रेशनल, तो यहां पर रेशनल नंबर नहीं है। √3 और माइनस √3 ये दोनों रेशनल नंबर नहीं है, ये दोनों इरेशनल नंबर हैं। जबकि हमें इस सेट में बोल रहा है कि ए में क्या होने चाहिए? रेशनल होने चाहिए, इसलिए ये नल सेट हो गया। यानी कोई भी मेंबर है नहीं इसमें, इसलिए हम इसको क्या बोलते थे कि ये नल सेट है। दूसरा हम देखते हैं, बी is a set in which there are x members such that x is an even number। x is an even number। अब an even number का मतलब इसमें 2, 4, 6 है ना, इवन नंबर हो। तो इवन नंबर तो ये सभी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो ये तो नल सेट नहीं है, नो नल सेट, या एम्प्टी सेट बोल सकते हैं इसको। ये हो गया नो एम्प्टी सेट। बी सेट है जिसमें एन इवन नंबर, एन इवन नंबर का तो मतलब केवल एक लिखेंगे हम, है ना। ये थोड़े से ध्यान देना है, यहां पर केवल एक नंबर आएगा, तो इसको ठीक है, यहां केवल 1 आएगा, तो भी एम्प्टी सेट तो नहीं है ना। ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये क्या है? नॉट एम्प्टी सेट। अब आप देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, सी इज अ सेट इन विच देयर आर x मेंबर्स सच दैट वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 5। अब अगर हम नेचुरल नंबर ध्यान से देखें, यहां पर नेचुरल नंबर 4, 5, 6, 3, ये देखो नेचुरल नंबर लिखा है। अब 4 और 5 के बीच में नेचुरल नंबर कोई दिख रहा है इसमें? नेचुरल नंबर हमें लेना, रियल नंबर नहीं लेना है, या रेशनल नंबर नहीं लेना है, इरेशनल नंबर नहीं लेना है, फ्रैक्शनल नंबर नहीं लेना, केवल क्या लेना है?
नेचुरल नंबर। तो 4 और 5 के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 4 और 5 के बीच में नेचुरल नंबर हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा या एम्प्टी सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट। इसमें कोई मेंबर नहीं आएगा। या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं, इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते थे। ये एम्प्टी सेट का साइन है। अब आप देखो यहां पर जो है वो मिस प्रिंट है, यहां पर लिखना चाहिए था एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। D is a set in which there are x members such that x square is equal to 25 and x is an odd number. An odd number, odd number होना चाहिए। तो इसमें तो odd number, अब x is equal to अगर हम निकालते हैं तो प्लस माइनस 5 आएगा, तो हमें एक लेना है। तो ये जो है odd number है 5, मतलब 2 से अगर हम डिवाइड करें, इसमें डिवाइड नहीं होगा तो ये odd number ही है ना। तो नॉट एम्प्टी सेट, नॉट एम्प्टी सेट। ये भी क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब हमें इसमें देखते हैं एग्जाम्पल्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इसकी डेफिनेशन दी गई जो हमने पहले से बता दिया है। A set which has finite numbers of elements and ध्यान देना है, a set which has finite number of elements is called finite set, otherwise it is called an infinite set। अब आप इसमें ध्यान दीजिए, finite number of elements countable by natural number which must be terminated anywhere, terminated at any natural number but not infinity। ये इन्फिनिटी वाले में नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिए। ये जो नंबर नहीं है ये सिंबल है, ध्यान दीजिए। हम दोबारा मैं बता रहा हूं, ये जो इन्फिनिटी का साइन है, ये जो इन्फिनिटी का साइन है, ये सिंबल है, ये कोई नंबर नहीं है। इसलिए ये हम केवल लिखते हैं कि इनफाइनाइट मीन्स अनडिफाइंड, मीन्स जिसकी डेफिनेशन वहां पर किसी भी नंबर की समाप्त हो जाती है। अब आप देखिए, सेट विच हैज फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स मीन्स काउंटेबल बाय नेचुरल नंबर विच मस्ट बी टर्मिनेटेड एट एनी नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, 100, 10, 5, 4, तो किसी न किसी नंबर पे टर्मिनेट होगा तभी वो फाइनाइट सेट होगा, है ना। अब आप देखते हैं, इधर एग्जाम्पल देखते हैं फाइनाइट सेट्स के एग्जाम्पल। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो फाइनाइट सेट है ये, क्योंकि देखिए इवन नेचुरल नंबर जो होता है ये भी असल में नेचुरल नंबर ही है जो कि इवन वाला है, लेकिन वो किस पे टर्मिनेट हो रहा, 100 पे टर्मिनेट हो जाता है, इसलिए ये क्या है, फाइनाइट सेट है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2, 4, 6 अप टू 100। तो देखिए 100 पे समाप्त हो गया, ये फाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ सोल्जर्स इन इंडियन आर्मी, ये भी फाइनाइट सेट है, क्योंकि इंडियन आर्मी में इनफाइनाइट सोल्जर्स थोड़ी हैं, इसमें भी फाइनाइट सोल्जर्स हैं, इसलिए ये भी फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर्स,
इवन प्राइम नेचुरल नंबर्स, ये भी देखिए इवन प्राइम नेचुरल नंबर्स 2 होता है केवल, और ये भी क्या है, काउंटेबल है, और नेचुरल नंबर्स काउंट हो रहा है, 1 ही नंबर है, इसलिए ये क्या हुआ, फाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन दी अर्थ, जो पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उसमें पर्सन्स का मतलब इसमें इंक्लूड है लेडीज, जेंट्स, किड्स, है ना, सभी इंक्लूड है, लेकिन ये काउंटेबल है। क्यों? क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन देखें तो पॉपुलेशन क्या बता रहा है कि ये लिमिटेड नंबर है। पॉपुलेशन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि निगेटिव थोड़ी लिखते हैं पॉपुलेशन। तो इसलिए पॉपुलेशन कैन बी काउंटेड बाय नेचुरल नंबर्स एंड टर्मिनेट एट एनी नेचुरल नंबर। 130 करोड़ यानी 130 करोड़ ऑफ people in our country. This is the population of country generally. तो 130 crores means नेचुरल नंबर कहां पर खत्म हो रहा, 130 करोड़, तो ये भी फाइनाइट सेट है। क्लियर? एग्जाम्पल्स ऑफ इनफाइनाइट सेट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। देखिए प्लेन के जितने पॉइंट्स है वो हम नेचुरल नंबर से काउंट नहीं करते हैं अधिकतर, ठीक है, उसको हम ABC पॉइंट लिखते हैं, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। देखिए कोई भी सेट किसी भी प्लेन पर होता है ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको ABC ऐसे लिख सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट है। ये सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन, किसी भी प्लेन पे लाइनें बहुत सारी हो सकती हैं, वो भी पैरेलल ना हो, स्क्यू लाइन, मतलब स्क्यू लाइन तो नहीं होगी, ऐसे कोई भी लाइन ऐसे हो सकती है। लाइन का मतलब लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन की बात हो रही है, तो इसमें एरो लगा होगा जो इनफाइनाइट तक जाती है। ये कोई लाइन ऐसे हो सकती है, तो ये सब क्या है, इनफाइनाइट है, क्योंकि बहुत सारी लाइनें हो सकती है। लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, लाइन इज एन इमेजिनरी ऑब्जेक्ट which has no area, which has only length not breadth. So this plane contains infinite lines. यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ये भी देखते हैं हम। यूनिवर्सल सेट इज जनरली डिनोटेड बाई U। ये चीज आपको पहले से पढ़ाया जा चुका है, हमने समझाया था, इसमें से स्टेप बाय स्टेप दिया है। यूनिवर्सल सेट इज जनरली डिनोटेड बाय U। अ सेट हैविंग ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। पॉसिबल मीन्स, देखो यहां पर दूसरी डेफिनेशन को ध्यान दीजिए, अ सेट दैट कंटेन्स ऑल इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, all in the given context, it's very important line, given context। ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं, फिर से रिवीजन हो जाएगा। A इक्वल टू 1, 2, 3, B इक्वल टू 4, 5, 6, C इक्वल टू 9, 10। अब अगर इसका कोई यूनिवर्सल सेट हमें बताना है, तो यूनिवर्सल सेट हम या तो नेचुरल नंबर हम कह सकते हैं, नेचुरल नंबर भी हम इसको कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट, जो बहुत बड़ा सेट है जिसमें ये सभी होंगे। लेकिन हम गिवन कॉन्टेक्स्ट जब लिखा होता है, कंटेन्स ऑल इन गिवन कॉन्टेक्स्ट, यानी दिए हुए सेट के रेफरेंस में अगर हम देखें, इसको देखते हुए, इसको देखते हुए, इस सेट को देखते हुए, तो हम एक सेट ऐसे भी बना सकते हैं, यूनिवर्सल सेट ये हो जाएगा। कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, ये जो है ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि गिवन कॉन्टेक्स्ट जब कहता है, इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी दिए हुए सेट्स होते हैं वो सब, उसके सभी एलिमेंट्स जो हैं जिस सेट में हो जाए वही सेट उसके लिए यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। गिवन कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट अगर अलग भी हो सकता है तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट अलग भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल,
When we usually study टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब ये होता है, टू डायमेंशनल का मतलब एक्स डैश एक्स, एक्स एक्सिस, वाई डैश वाई, वाई एक्सिस, ये when we usually study two dimensional coordinate geometry, then the set of all points in the xy plane is called universal set. जितने भी पॉइंट्स होते हैं सब, इनको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हर नंबर कहीं ना कहीं कोई ना कोई नंबर रिप्रेजेंट करता है। जैसे 2 3 ले लिया हमने, तो 2 3 कहाँ रिप्रेजेंट करेगा, ये 1, ये 2, यानी 2 3 यहाँ कहीं होगा, -2 3 यहाँ होगा, -2 -3 यहाँ होगा, और 2 -3 इस सेट में होगा। तो देखिए कहीं पर भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, तो हम क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, व्हेन वी यूजुअली स्टडी टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो जब कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हो तो जो जितने भी एक्स वाई प्लेन में जितने भी पॉइंट होते हैं सबको मिलाकर के हम क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी हैज 2 4 5 6, सी हैज 1 3 5 7, देन u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ ये गलत लिखा है, ये नहीं होगा इधर, 1 2 3 4 5 6 कैन बी यूनिवर्सल सेट। देखो ये सेट और ये सेट, इन तीनों सेट का जो मिला करके इसके अंदर है, यानी ये जितने भी सेट है सबके मेंबर इसमें हैं। देखिए 1 2 3 है इसमें, तो इसमें 1 2 3 लिखा है। इसमें कितने हैं, 2 4 5 6, 2 4 5 6, ये भी है। अच्छा, कोई नंबर रिपीट होगा तो उसको रिपीट नहीं करेंगे। और देखिए इसमें 1 3 5 7, 1 3 5 7, ये भी है। तो ये इसके लिए क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यहां पर आती है बात इक्वल सेट्स की। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट्स का मतलब होता है ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 1 2 3। अब आप देखिए सेम और इक्वलेंट ये दो चीजें अलग अलग हैं, अभी आप देखेंगे आगे। देखिए इसमें इसका कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए कितना है, एन ए 3, इसमें काउंटिव 3 है। और इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, इसकी भी 3 है। कार्डिनलिटी दोनों की सेम है। और मेंबर्स जितने हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, वो भी सब सेम हैं, एक जैसे हैं। 1 है तो 1 जैसा 1 ही है, 2 2 3 3, ये एक जैसे ही है। यानी किसी भी सेट, अगर कोई भी दो सेट इक्वल कब कहलाएगा, जब उसके मेंबर्स काउंट करें तो दोनों या तीनों जितने भी सेट होते हैं सबके मेंबर इक्वल हों, यानी उसके एलिमेंट्स इक्वल हों। यानी यूं कह सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स ए बी सी इक्वल हो, और वो सेट के जितने मेंबर्स हैं वो सब सेम हो, एक जैसे हों। एक एग्जांपल और देखते हैं। ए इज इक्वल टू ए बी सी, बी इज इक्वल टू ए बी सी, ये दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि बी को हम जो रिपीट हो रहे हैं उनको हम एक ही बार लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसा लिखा होता तो उसको हम एक ही बार लिख सकते हैं, ए बी सी। तो ये देखिए इसकी कार्डिनलिटी भी सेम है और इसके मेंबर्स भी एग्जैक्ट हैं। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी, यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी एंड एलिमेंट्स आर डिट्टो और सेम और एग्जैक्ट, एक जैसे होने चाहिए। अब इक्विवेलेंट सेट्स की बात हम करते हैं।
देखिए इक्वलेंट सेट की बात करते हैं। इक्वल सेट अभी आपने पढ़ा था, अब इक्वलेंट सेट की बात करते हैं। देखिए कोई भी दो सेट दिया हो ऐसे 1 2 3 B 1 2 3 और एक सेट दिया है A इक्वल टू A B C और C और B दिया है 1 2 3। अब इसमें देखिए ये जो पहला वाला सेट है A और B, ये दोनों सेट A और B ये वाले, इनके तो कार्डिनलिटी भी सेम है, यानी इनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और एग्जैक्ट हैं, तो ये तो इक्वल सेट हो गया, इक्वल सेट हो गया। लेकिन इसमें केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ या मेंबर्स इनके सेम है, या कार्डिनलिटी ऑफ A इक्वल टू 3, कार्डिनलिटी ऑफ B इक्वल टू 3, तो इनकी कार्डिनलिटी सेम है, मतलब काउंट इनके मेंबर तो सेम है लेकिन ये एग्जैक्ट एक जैसे नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट्स हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट्स हो जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड इक्वलेंट सेट्स। इफ टू सेट्स आर सच दैट their elements are same and cardinality of given sets are also same, then they are called equal sets. But if two or more than two sets are given and if only their cardinality are same only but the members are not exact or same or ditto, then we can say that these given sets are equivalent sets, not equal set. There is much difference. You must realize this. अब यहां पर हम बात करते हैं सबसेट की। सबसेट, सबसेट मीन्स सब इंस्पेक्टर। आप समझते हैं सब इंस्पेक्टर क्या होता है? सब इंस्पेक्टर इज, इंस्पेक्टर बड़ा होता है और सब इंस्पेक्टर छोटा होता है। तो यानी जितने भी राइट्स या अधिकार जो है इंस्पेक्टर के होते हैं उससे कम अधिकार सब इंस्पेक्टर के होते हैं, लेकिन सब इंस्पेक्टर के जो अधिकार होते हैं वो और उससे थोड़े ज़्यादा अधिकार इंस्पेक्टर के होते हैं। तो इसलिए सब इंस्पेक्टर का सबसेट कहा जा सकता है अगर उसके हम राइट्स की बात करें तो यहाँ पर सेट की बात करते हैं अभी, तो ये वर्ड भी ऐसा ही है। जैसे मान लीजिए सबसेट का मतलब क्या होता है? अ सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। कह रहा है कि कोई भी सेट ए को हम बी का सबसेट कह सकते हैं जब ए के जितने मेंबर्स हैं वो सब बी में हों, पूरे के पूरे मेंबर्स इसमें होने चाहिए, एक भी छूटने न चाहिए। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखिए ये जो साइन है ये देखिए यूनिवर्सल सेट और यूनियन, और ये क्या है? सबसेट है। ए भी क्या है? सबसेट है, लेकिन वो किस कंटेस्ट में वो भी आपको पता चलेगा। तो अब आप देखिए एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं ए इज अ सेट इन विच देयर आर ए बी सी, देयर आर 3 एलिमेंट्स एंड बी इज द सेट इन विच A, B, C, D set. You can see clearly that all the elements of the set A is contained in set B. Every member of set A is contained in B, means all the members of set A are in set B. But all the members of set B is not contained in A. A is subset of B. Every members of set A is contained in set B, but B is not subset of A. ये ध्यान रखना है। A is subset of B, but B is not subset of A.
अगर हम ऐसे लिख देते हैं बी, अगर हम दूसरा एक ले लेते हैं जिसमें लेते हैं ए बी सी, अब आप देखिए ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, तो इस कंडीशन में वो दोनों सेट ए इक्वल टू बी हो जाएंगे। ए के जितने मेंबर है वो बी में है और बी के जितने मेंबर है वो ए में है, तो इस कंडीशन में ए इक्वल टू बी है। अब इसका भी मतलब ये होता क्या, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। तो ए को हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर का मतलब ए के जितने मेंबर है बी में तो हैं, लेकिन बी में कुछ ऐसे भी मेंबर हैं जो ए में नहीं है, यानी ए से कुछ ज़्यादा हैं, तो ये ए क्या कहलाएगा, प्रॉपर। अगर ये बी में उतने ही मेंबर हैं तो सेट तो बनेगा सबसेट, लेकिन वो प्रॉपर नहीं होगा, इम्प्रॉपर होगा। ये चीज़ आपको अभी समझ में आ जाएगी। अभी आप सबसेट तो समझ लें, जैसे मान लीजिए ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये दिया है। अब ए के जितने मेंबर है बी में हैं तो हम लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब मान लीजिए कभी दिया है ए इज ए सेट 1 2, ए इज ए सेट in which there are 2 members, B is a set in which 3 4 5। अब इसमें A के जितने मेंबर है इसमें है ही नहीं, तो A इज नॉट सबसेट ऑफ B। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर कभी सबसेट की बात हो रही है, ध्यान दीजिए आगे आपके सवाल में जरूरत पड़ेगी, तो जब कभी सबसेट की बात हो तो यहां भी सेट होगा और सबसेट ऑफ एनी सेट ये होगा, ध्यान रखिए। अगर सेट है यहां लिखा हुआ और यहां भी सेट हो सकता है तो ये सबसेट का साइन लगेगा, लेकिन अगर यहां एलिमेंट होगा, कोई एलिमेंट होगा, तो यहां फिर यहां अगर सेट है तो यहां बिलोंग्स टू लगेगा, ये बिलोंग्स टू, ध्यान रखिए। एलिमेंट और सेट का भी दिया है तो ये साइन लगेगा, और सेट का भी दिया है तो वो सबसेट का साइन लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई डोंट नो इन नेक्स्ट पेजेस इट इज रिटन और नॉट, बट आई एक्सप्लेन थॉरली अबाउट दिस एंड इट मस्ट बी रिमाइंडर फॉर यूर फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट क्वेश्चंस। यहां पर आपको वो पूरी क्लियर हो जाएगी बात, जो अभी हमने आपको पीछे बताई है उसको यहां पर हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ठीक है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, देखिए, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज कंटेन्ड इन बी देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यानी ए के जितने मेंबर है बी में हों, लेकिन एक चीज यहां पर ये नहीं लिखी है कि बी में ए से कम एक मेंबर ज्यादा होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर कहलाएगा, नहीं तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर देखिए ए वाला जो सेट है उसमें 1 2 3 है, बी वाला जो सेट है इसमें 1 2 3 4 5 है, तो देखो ए के जितने मेंबर है बी में तो हैं, लेकिन बी में ए से ज्यादा हैं। अगर हम यहाँ 4 5 ना लिखते तो भी ये सबसेट होता, क्योंकि इसके जितने मेंबर सब इसमें होते, लेकिन प्रॉपर सबसेट ना होता क्योंकि दोनों में मेंबर इक्वल हो जाता है। तो इसलिए हम इसको प्रॉपर कब कहते हैं, जब ए सेट के जितने मेंबर्स है बी में तो हों, लेकिन बी में ए से कुछ ज्यादा मेंबर्स हों, कम से कम 1 मेंबर या 1 एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए, तब ये प्रॉपर सबसेट है। मान लीजिए यहां लिखा है ए इज इक्वल टू 1 2 और यहां लिखा है बी इज इक्वल टू 1 2 3, तब तो क्या कहलाएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी मीन्स प्रॉपर सबसेट, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, जिसमें कि यहां इक्वल साइन नहीं लगाएंगे हम, यहां जो ऐसे साइन लगेगा ऐसे ये नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट का मतलब ए के जितने मेंबर है बी में, तो बी में ए से ज्यादा मेंबर है, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लगाएंगे, ये प्रॉपर सबसेट हमें ऐसे कहलाएगा। यानी प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं
कि किसी भी सेट के जितने मेंबर्स हैं अगर दूसरे वाले सेट में हैं, लेकिन दूसरे वाले सेट में जितने मेंबर हैं पहले वाले मेंबर से एक या दो ज्यादा हो, कम से कम एक ज्यादा हो, और ज्यादा बहुत सारे हो सकते हैं, करोड़ भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ज्यादा होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर सबसेट होगा। डू यू अंडरस्टैंड? इफ टू सेट्स आर गिवन सच दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ ए इज contained in set B, but B the second set is has more at least one member more than set A, then you can say A is subset of B, otherwise that is called improper subset। अब देखिए इधर, यहां पर देखिए, if A is equal to B और A is equal to 1 2 3, B is equal to 1 2 3, तो देखिए A सबसेट तो है B का, लेकिन ए वाले जितने मेंबर है सब बी में है, लेकिन बी में एक भी ज्यादा नहीं है, तो इसलिए ए बी का सबसेट है, लेकिन वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो इम्प्रॉपर सबसेट को हम क्या लिखते हैं? ए इज सबसेट ऑफ बी तो है ही है, लेकिन चूंकि ए इज इक्वल टू बी वाला है ये भी, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट, ए इज improper subset of B। ये बहुत अंतर समझ में आना चाहिए। अगर मान लीजिए ए में ए के जितने मेंबर है बी में तो हैं, लेकिन ए में बी में कुछ मेंबर हैं जो ज्यादा हैं, तब तो वो प्रॉपर सबसेट होगा। लेकिन अगर ए और बी में दोनों मेंबर इक्वल हैं तो वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अब सुपर सेट किसको कहते हैं? जैसे ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी ए के मेंबर जितने हैं बी में हैं, तो ये इम्प्रॉपर भी हो सकता है। तो बी इज सुपर सेट फॉर ए। भाई देखिए ए के जितने मेंबर है बी में हैं, तो बी तो सुपर हो ही गया है, तो इसलिए हम इसको ये भी याद रख सकते हैं कि बी सुपर सेट क्यों कहलाता है? क्योंकि ए के जितने मेंबर हैं सब बी में हैं। तो कोई भी सेट जो है अगर किसी दूसरे सेट का सबसेट है, तो दूसरा वाला सेट पहले वाले सेट का क्या है? सुपर सेट है। ए इज सबसेट ऑफ बी, ये तो है, और ए इज इक्वल टू बी, यहां पे ये काट देता हूं, ए इज इक्वल टू बी, ये तो इसका मतलब ये होता है। अब यहां पर क्या है? B इज सुपर सेट, B इज सुपर सेट फॉर A। A के लिए तो सुपर सेट हो गया, इसको याद रखने के लिए हमने बोला, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा जहां तक ख्याल है। अरे ये आप यूं समझ सकते हो, A इज इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 है, और B इज इक्वल टू क्या है? 1 2 3 4 है, तो A इज सबसेट ऑफ B, और ठीक है सबसेट ऑफ B, तो B इज सुपर सेट ऑफ A, ये भी कह सकते हैं हम इसको। A इज सबसेट ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B, तो हम ये भी लिख सकते हैं B इज सुपर सेट ऑफ A, ऐसे लिख सकते हैं। ये चीज अपने को थोड़ा क्लियर होना चाहिए, ठीक है, समझ में आता आ रहा होगा। I am trying my best to explain each and every point related to given context, given set or anything, but it may be possible that this is the nature of human beings, that there must be may be committed any mistakes in solving question. Then for that I would like to be pardoned by you all. Number of subsets, how this symbol or formula is written, you may be able to know in detail in permutation and combination. But for the questions solving, we can only learn by heart this formula. For any set A, if number of members या elements of A is equal to n, then the number of subsets of A is equal to 2 की पावर n। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सेट में जितने भी मेंबर होते हैं
अगर उसके हमें क्या बनाने हैं, पावर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो जितने मेंबर होते हैं 2 की पावर के रूप में हम लिख सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, कितने सबसेट बनेंगे वो पता चल जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये तो हमने बता दिया, देखो इसमें कितने मेंबर हैं, 1 2 3। अब हमें बताना है कि इसमें सबसेट्स कितने बनेंगे। तो हम देखिए 2 की पावर इसमें मेंबर्स कितने थे, 1 2 3, यानी 3 मेंबर थे, तो 2 की पावर हमने 3 लिख दिया तो 8 आ गया। तो इसका मतलब इसके जितने भी सबसेट्स होंगे मैक्सिमम कितने होंगे, 8 होंगे। अच्छा, थोड़ा सा करके देखते हैं हम। नंबर ऑफ जितने भी सबसेट्स होते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, पावर सेट। पावर सेट ऑफ ए इसको बोलते हैं, ध्यान दीजिए। पावर सेट ऑफ ए का मतलब ऑल द सबसेट्स ऑफ गिवन सेट if it is written in braces or in curly bracket, then this set, which is set of subsets, is called power set of A. You remember this. For example, A is a set in which there are only 3 members. तो आप ये ध्यान रखिए कि null set is subset for all set. किसी भी सेट का जो नल सेट होता है, यानी नल सेट, ये सभी सेट का सबसेट होता है। कोई भी सेट हो इसका सबका सबसेट होगा ये। तो ये तो हमेशा सबसेट होगा। अगर किसी भी सेट में कुछ नहीं है तो भी उसका एक सबसेट तो आएगा। तो इसका मतलब पहला सेट हमारे पास सबसेट क्या हो गया, नल सेट। इसको हम नल सेट भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा सेट को हमेशा हम अकेला नहीं 1 2 3 नहीं लिखेंगे, ये तो एलिमेंट्स हैं। इनको हमें क्या लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है 1। देखो ये भी एक सबसेट है इसका। फिर 2 भी लिख सकते हैं, ये भी इसका सबसेट है क्या। फिर 3 भी लिख सकते हैं, ये भी इसका सबसेट है। फिर 1 2 भी लिख सकते हैं, ये भी इसका सबसेट है। फिर 1 3 भी लिख सकते हैं, ये भी इसका सबसेट है। फिर 2 3 भी लिख सकते हैं, ये भी इसका सबसेट है। फिर 1 2 3 4 5 6 7, एक और बचा है, कौन सा, 1 2 3, ये भी हम ले सकते हैं। अब इसको हम पूरे कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। ये जो सेट है, ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो सेट है, ये सभी सेट हैं, ये सभी सेट हैं। लेकिन ये अब ये इस ए सेट के ये सभी सब सेट्स हैं। ए सेट का पहला सबसेट क्या है, नल सेट। दूसरा क्या है, 1 जो इसके अंदर लिखा है। तीसरा सबसेट ये, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो यानी देखिए ए के जितने भी सबसेट थे कितने होने चाहिए थे, 2 की पावर 3। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 8। तो देखिए यहां पर 80 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हम सबसेट लिख सकते हैं। इज इट क्लियर। अब अगर ये पावर सेट जो है ये सबसेट का सेट है, तो हम अगर ये ऐसे लिखें, ऐसे देखिए ध्यान से, 1 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि ये भी सेट है और ए भी सेट है, तो दोनों सेट है। तो हम चूंकि इसमें ये मेंबर है, एलिमेंट है, ये असल में सेट तो है लेकिन इसके लिए एलिमेंट है, ये मेंबर है इसका, इसलिए हम इसको बिलोंग्स टू लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें 1 और सब ये लिखें बिलोंग्स टू ए, तो ये रॉन्ग है। क्योंकि ये सेट है और सेट कभी भी मेंबर नहीं होता किसी भी सेट का। ये सबसेट है, तो सबसेट ए में थोड़ी है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख सकते। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन है, सम क्वेश्चंस चेक वेदर फॉलोइंग सेट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखिए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये केवल आपका प्योरिफिकेशन माइंड को शार्प करने के लिए है। ये पहले वाले में क्या है, एक सेट है जिसमें x मेंबर्स हैं और किस प्रकार से हैं कि x² + 1 = 0 और x क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो क्या ये नल सेट है, हमें चेक करके बताना है। अब आप देखिए इसका एग्जांपल, x² + 1 = 0, x² = -1। अब हमें यहां पर थोड़ा सा रुकना है।
कि हमें रियल नंबर में कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करें तो -1 आ जाए, या मान लीजिए कोई भी नंबर हो, रियल नंबर्स कोई भी लें, रूट का लें, स्क्वायर रूट का लें, माइनस का लें, प्लस का लें, जीरो लें, कुछ भी लें, तो क्या उसका स्क्वायर करने पर -1 हो जाएगा? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं, क्योंकि स्क्वायर करने पर हमेशा नंबर पॉजिटिव हो जाता है और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर -1 हो। तो इसका मतलब इसमें कोई भी मेंबर नहीं है, तो ये क्या हो गया? नल सेट हो गया। या तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? ऐसे, या फिर रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ये नल सेट है। क्लियर? अब आप इसमें देखो, 0 एक नंबर है, 0 एक नंबर है, अगर किसी भी चीज के अंदर वो आ गया तो एक एलिमेंट बन गया। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक मेंबर है, तो ये आप पहले वाले को क्या कह सकते हो? फॉल्स, कि ये जो है ये ट्रू नहीं है, ये नल सेट है, सॉरी ये ट्रू है, मतलब नल सेट है, यही चीज तो हमें प्रूव करना है, तो ट्रू है कि नल सेट है, कोई मेंबर नहीं है, तो इसको हम ट्रू कह सकते हैं। ठीक है, ये ट्रू है। अब दिस इज द सेट इन विच देर आर वन एलिमेंट, 0 इज नल सेट, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये एक, देखो ऐसे कभी लिखा है तब ये नल सेट होगा, इसके अंदर एक मेंबर आ गया 0, तो ये नल सेट नहीं हुआ। अगर यहाँ पर ऐसे भी आ जाता कभी नल सेट, तो भी ये नल सेट नहीं है फिर ये, क्योंकि एक मेंबर है इसमें, भले वो 5 लिखा है, तो ये फॉल्स है, ये नल सेट नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं तुम लोग को देख रहा हूं। ठीक है, पेन कॉपी लेकर के आराम से बैठा करो और धीरे धीरे समझो, एक एक चीज मैं समझा रहा हूं, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, ताकि जो बड़े बड़े सवाल जब हम करेंगे, इसमें जेई के सवाल, आपकी एक्सरसाइज के सवाल और एक्स्ट्रा सवाल सभी करवाएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने चाहिए। ये एपिसोड कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, जितने भी लेक्चर्स हैं ये कंटिन्यू रहेंगे, कोई जरूरी नहीं कि 1 2 3 हो, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, वो तो ज़रूरत के हिसाब से होगा। अब हम दूसरा देखते हैं, सी में क्या है? दिस इज अ सेट इन विच देर आर एक्स मेंबर्स सच दैट एक्स इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, एक्स इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, small natural number. How can we write the natural number? It starts with 1, then 2 3 4 5 up to infinity. तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट किससे होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 2 3 ऐसे होता है, तो सबसे पहला नंबर ही तो स्मॉलेस्ट नंबर है, तो ये इसका एक मेंबर आ गया इसमें, तो ये नल सेट नहीं है। ये एक्स इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज ए सिंगलटन सेट, इसमें एक मेंबर है और ये सिंगलटन है, यानी सिंगल मेंबर है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? ट्रू है ये। दैट्स राइट। अब ये वाली बात हम देखते हैं, नल सेट बिलोंग, 0 क्या बिलोंग कर रहा? नल सेट में। नल सेट में 0 कैसे? जब उसमें कुछ है ही नहीं पहले से, तो उसमें कहां से 0 आ जाएगा? तो ये तो फॉल्स है, यानी पहले से किसी भी कमरे में कुछ नहीं है और उसमें कोई कह रहा है इसमें कोई चीज़ रखी हुई है, तो कैसे पता चलेगा? है ही नहीं उसमें कुछ भी, तो इसको हम नहीं कह सकते। 0 भी उसमें नहीं हो सकता, हालांकि 0 एक नंबर है। अब ये सिंगलटन सेट है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि देखिए ये 5 जो है नल सेट होता है, ये तो बात जानते हैं हम, लेकिन ये भी एक तो मेंबर तो कह सकते हैं, इसको एक एलिमेंट तो कह सकते हैं। ये एक सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी सेट में कोई मेंबर नहीं है, लेकिन ये अगर किसी सेट के अंदर आता है तो एक मेंबर तो ये होगा ही, एक मेंबर इसके अंदर आ गया, तो ये सिंगलटन सेट है, ये ट्रू है। डी, ये फॉल्स है। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखो, इफ ए इज अ सेट इन विच देयर आर 1 2 3 and 4 मेंबर्स, चेक फॉर ट्रू और फॉल्स। अब यहां पर देखो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, सिंपल नहीं है ये सवाल।
अपने को क्या लगता है कि भाई हम बड़े इजी लेते हैं, इजी लोगे तो ये ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, है ना। देखिए 1 बिलोंग्स टू ए, देखिए ये भी क्या है, 1 क्या है, मेंबर है, एलिमेंट है, और ये क्या है, सेट है। तो अगर यहाँ एलिमेंट है, यहाँ सेट है, यहाँ एलिमेंट और यहाँ बिलोंग्स टू और यहाँ सेट, ये तो सत्य है, ये होता है, ये हो सकता है। ये एलिमेंट है और ए सेट में है, ये एलिमेंट है, ये सेट है, तो एलिमेंट सेट के अंदर होता है तो बिलोंग्स टू लिखेंगे। तो ये क्या होगा, 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 ए में है, यानी 1 जो एलिमेंट है, क्या ए वाले सेट में ये एलिमेंट है, यस है, तो ये क्या होगा, ट्रू है, ट्रू। अब ये जो सवाल है इसमें, ये देखो, ये अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम यूं लिख सकते हैं ताकि समझ में आ जाए, ये 1 है और बिलोंग्स टू, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1 2 3, ऐसे लिख दिया। ये एक सेट है और एक सेट बिलोंग्स टू इस सेट के अंदर, अंदर तो एलिमेंट्स लिखा है, जबकि ये सेट है, तो सेट और ये क्या है, एलिमेंट है, ये क्या है, सेट है। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एलिमेंट है। तो देखो ये सेट इस एलिमेंट के अंदर कहां है, ये तो नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये सबसेट तो हो सकता है लेकिन मेंबर नहीं हो सकता, इसका एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर अगर ऐसे लिखा होता तब तो हम इसको लिखते ऐसे, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, यहां पर एक सेट है और सेट इसका सबसेट नहीं हो सकता, बिलोंग्स टू नहीं हो सकता, सबसेट हो सकता है। तो ये क्या है, ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, तो ये फॉल्स है, ठीक है, ये करेक्ट नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं। देखो इधर ये एक सेट है और ये सेट बिलोंग्स टू दिस सेट, तो क्या ये सेट इसके अंदर है, नहीं है, ये तो सब एलिमेंट्स हैं, ये वाला सेट थोड़ी इसके अंदर है। यहां पर ये रूल क्या लिखा है, एलिमेंट्स कभी भी हो किसी भी सेट में तो बिलोंग्स टू है, लेकिन अगर ये सेट है तो ये बिलोंग्स टू नहीं लगेगा, अगर सेट है तो यहां सबसेट लगेगा। सेट सबसेट हो सकता है सेट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं 2 और 3, ये सबसेट है, देखो ये सबसेट है और मतलब ये भी एक सेट है, मान लो ये भी सेट है, देखिए ये भी सेट है और ये भी सेट है, तो ये सेट के जितने मेंबर क्या इसमें हैं, यस हैं, देखिए 2 3 सबसेट ऑफ 1 2 3, देखिए इसके जितने मेंबर है इसमें हैं कि नहीं, तो इसलिए ये इसका सबसेट तो है, ये इसमें तो कह रहे ना कि ये मेंबर है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। दैट्स ऑल, वेरी गुड। अब आप देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यस, ये जो है ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरा कलर ले लेते हैं, है ना। देखिए ये जो नल सेट है, ये नल सेट, ये सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट, ये सेट है, नल सेट है ना, इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हमेशा याद रखना है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी देखिए हमारे पास कोई सेट दिया है ए 1 2 3 और यूनिवर्सल सेट क्या दिया है, इससे तो ज्यादा ही होगा ना, ऐसे दिया, मान लो नेचुरल नंबर है, तो ये इसका क्या है, सबसेट ही तो है, ए इज सबसेट ऑफ
है ना, नेचुरल नंबर, ये हो सकता है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी देखिए यूनिवर्सल सेट जो होता है कभी भी अगर बोला जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने सेट हैं गिवन सेट, वो सब उसके अंदर उसके मेंबर होंगे, तभी तो यूनिवर्सल सेट होता है। तो इसका मतलब ए अगर कोई मेंबर है तो यूनिवर्सल सेट के अंदर होना चाहिए, तो ये इसके मेंबर इसके अंदर हैं, ए इसलिए इसका क्या है, सबसेट होगा। तो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, कोई भी सेट हो यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होगा। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई सेट लिखा है ए 1 2 और बी, देखिए ए फिर से लिख दो आप 1 2, तो आप देखो ए इज सबसेट ऑफ ए लिख सकते हो कि नहीं, सिंपल सी बात है। पावर सेट, पावर सेट अभी हमने बताया था, पावर सेट ध्यान देना है। पावर सेट किसको कहते हैं अभी हमने पहले बताया था, लेकिन फिर से एक बार बता दे रहा हूं, तो इसको समझेंगे। पावर सेट, अ सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ अ पर्टिकुलर सेट, यानी किसी भी सेट के जितने भी सबसेट्स होते हैं उन सब को जिस सेट में लिखते हैं उस सेट को हम पावर सेट कहते हैं। इफ अ सेट A is given, then all the subsets of A, if it is written in curly bracket or braces, then this set is called power set of set A. Is it clear? For example, A is a set in which A B member, कोई दो मेंबर हम ले लेते हैं। अब इसके सबसेट बनाए तो एक सबसेट तो यही होगा, दूसरा सबसेट ए होगा, तीसरा सबसेट बी होगा और चौथा ए बी होगा यस सर। अब आप देखो इसको हम देखते भी हैं कि कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, पावर्स को याद है आपको, 2 की पावर 2 यानी 4, तो देखो इसमें 4 हो गए, 1 2 3 4। ये जितने भी सेट हैं ये इसके सब सबसेट हैं, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ए इसका सेट हो गया, ये ए जो है इसका सबसेट ए भी हो गया, इसी तरह से आगे भी है। तो ये अगर सभी सबसेट्स को हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दें, ए इज इक्वल टू सॉरी, तो इसको हम पावर सेट बोल देंगे, पावर सेट ऑफ ए। देखिए कैसे लिखेंगे, एक कर्ली ब्रैकेट लिखा, फिर नल सेट, फिर ए और ये बी और ये ए बी, ये सब मिला के क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए मीन्स ऑल द मेंबर्स ऑफ ए, ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए रिटन इन कर्ली ब्रैकेट, देन दिस इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। फाइंड पावर सेट ऑफ ए। अब आप समझ गए होंगे, पहली बात तो इसके कितने बनेंगे, 2 की पावर 3, क्योंकि इसके मेंबर कितने हैं 3, तो इसका मतलब हम 2 की पावर जितने मेंबर होते हैं उतने लिखते हैं, तो कितने आएंगे 8 आएंगे। अब आप देख लो कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसके पावर सेट ऑफ ए लिख देते हैं, देखो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, हमें लगता है आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। नल सेट एक, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर बी सी, फिर ए बी सी। छूटा है कोई, हमें लगता नहीं छूटा है, ए बी सी है ना, ये पूरा ए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए पूरे, ये पावर सेट कहलाएगा इनका। हमको लगता है समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। ये भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर सभा समाप्त करेंगे, ठीक है। इंटरवल से कल चालू करेंगे, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, है ना, यहाँ तक क्लियर कर देंगे, ठीक है आपका। क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, इफ ए इज अ सेट, देखो ए में कितने हैं 1 2 3, ये मेंबर तो ही है, ये जो सेट है ए भी इसका मेंबर है, यानी इस सेट में एक सेट और भी है, तो ये इसका अभी मेंबर ही कहलाएगा और ए भी मेंबर है इसका। तो इसमें ये क्या पूछ रहा है, ये देखो, ये मतलब दिस क्वेश्चन इज सो वेरी इंपॉर्टेंट
to be clear, to be dominant the knowledge of what I explained. If A is a set, state whether the following are true or false. Very important question. 1 2 ये एक मेंबर है, ध्यान दीजिए, एक ये एलिमेंट है, नॉट सेट, ये एलिमेंट है, ध्यान दीजिए यहां पर ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है यानी मेंबर है। और ये जो एलिमेंट कभी होता है तो ये साइन नहीं लगता, इसकी जगह ये लगेगा। क्लियर है? यानी दिस इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, then it is not subset of A. So we can use this sign. If you can use this sign, epsilon, then this is. But it is not written here. It is written subset. So it is false. False. अब देखिए, ये अब इसमें देखो, ये एलिमेंट है और एलिमेंट ए में है, ये ध्यान दो, यहां पर ये जो एलिमेंट है ये ए सेट के अंदर ये एलिमेंट है। ये एलिमेंट का साइन, ये जो होता है बिलोंग्स टू, एलिमेंट्स हमेशा बिलोंग्स टू होता है। अगर यहां सेट है तो सबसेट होगा, तो यहां पर ये एलिमेंट है बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ये एक एलिमेंट है और ये ए में है, तो इसको हम बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं। यहां लिखा है तो ये ट्रू है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये, अब इसमें देखो ये क्या है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। यस, इस सबसेट में एक मेंबर है, ये खुला हुआ नहीं रखा है, तो ये इस समय एक, ये पूरा अगर हम ध्यान से देखें तो ये सबसेट कहलाएगा, एक मतलब ये सेट कहलाएगा इसको। तो ये जो सेट है इसके अंदर ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है यानी मेंबर है। तो ये मेंबर क्या इस सेट में है और इसकी मेंबर का ये सबसेट है। ये एक क्या लिखा है, सेट लिखा है, इस सेट में एक मेंबर है, इस सेट में एक मेंबर है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये देखो यहां पर 1 2 है। ठीक है, तो इसको हम इसको सबसेट कह सकते हैं, इसलिए ये सत्य है और ये ट्रू है। अब ये भी देखो, अब यहां पर एक गड़बड़ है कि ये जो है एक मेंबर है अंदर, लेकिन ये कर्ली ब्रैकेट क्यों लगा, क्योंकि ये सेट है। अब ये सेट है, ये भी सेट है, तो इस सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे हैं, लेकिन ये एलिमेंट थोड़ी, ये तो सेट है, तो इस एलिमेंट के अंदर ये सेट, ये थोड़ी होगा, ये तो सेट है। एलिमेंट अगर होता तो इसमें होता, ये एलिमेंट के लिए लगता है बिलोंग्स टू, इसलिए ये ऐसा नहीं हो सकता, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स। It is the last question of this session, this lecture, and I am tried my best to explain thoroughly A to Z, but this is the nature of human beings that I must have committed some mistakes or maybe written wrong, but it is pardonable for all of you, and it is, thank you very much all of you. I would like to meet you one time again in next lecture, second lecture.